Hello dear student, class 7th. Today we discuss a new topic, that is the breathing in different organisms. We already know how breathing happening in human body through the respiratory system, and the main organs for respiration in human is the lungs. So you have to remember that the main organs for respiration, for breathing in human, it is the lungs. Same, today we discuss a different types of organism and breathing in different type of organism. Just like a first of all we have to discuss in animal, just like a human, elephant, lion, cows, goats, frog, lizard, snake, birds, and human have lungs in chest cavity for the breathing. But if we talking about the insect, so insect have spiracles, small opening on body sides, है ना. तो इस have a spiracles, small opening on body sides. Second, we have the network of trachea, and that trachea have occur in the cockroach. Mainly जो cockroach होता है उसके पास जो है आपका एक क्या होता है बेटा, एक trachea होता है. तो network of trachea या air tubes जो होता है वो फोर किसके लिए होता है, आपका गैस एक्सचेंज के लिए होता है, जस्ट लाइक अ लंग्स इन अ ह्यूमन. तो थ्रू दिस ऑक्सीजन इंटर थ्रू द स्पाइरिकल्स, देन इट गो इनटू द ट्रैकिया, देन इट गो इनटू द बॉडी सेल्स, जस्ट लाइक अ ह्यूमन में जो है आपने देखा होगा कि ह्यूमन में सबसे पहले जो एयर जा रही थी वो थ्रू द नॉस्ट्रिल आपका लंग्स में जा रही थी, फिर लंग्स से आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट में जा रही थी, और बॉडी पार्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स से फिर सेल्स में जा रही थी. यहाँ पे देखो जो आपका जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें सबसे पहले आपकी जो एयर आती है वो आपकी स्पेरिकल्स में आती है, फिर आपका जो है ट्रैकिया में आती है, एंड देन इट गो, है ना, इनटू द बॉडी और बॉडी. ठीक है, तो दिस इज हैपनिंग इन द कॉकरोच एंड ऑल एज वेल एज different type of insects. Okay, so you have to remember which is the respiratory organs in insect, that is the trachea, and spiracle is the small opening on the body side. So you have to remember and you write down the notes on your notebook. ठीक है. Second, we have earthworm. So earthworm breathe through the skin. Earthworm breathe through the skin. You have to remember that earthworm breathe through the skin. मोस्ट जो आपकी अर्थवॉर्म होती है उनकी जो स्किन होती है मोइस्ट होती है एंड स्लाइमी होती है. थर्ड, वी हैव द फ्रॉग. फ्रॉग हैव लंग्स एज वेल एज ह्यूमन, बट इट ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द मोइस्ट स्लिपरी स्किन. तो फ्रॉग ऑल्सो हैव अ ब्रीथिंग ऑर्गन्स, इट इज़ द फ्रॉग, है ना. जस्ट लाइक अ अर्थवॉर्म हैव ब्रीथिंग ऑर्गन्स इज स्किन. तो आपका जो फ्रॉग होता है उसमें भी जो है जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होता है वो आपका क्या होता है, स्किन होता है, और लंग्स भी होता है फ्रॉग में बेटा, क्योंकि फ्रॉग इज द एम्फीबियन, है ना. इट इज ऑल्सो लिव इन द वाटर एंड ऑल्सो लिव इन द लैंड. तो व्हेन it's live in the land area, so it's use lungs as a breathing organs, and when a frog lives in the water, so it use breathing organ as slippery skins. Okay, so you have to remember that. Okay, aquatic animal, another aquatic animal, just like we have the fish. So fish is the example of aquatic animal, and in aquatic animals breathing organs is the gills. Just like we have the lungs, same जो है aquatic animals जो होता है आपके पास फिश होता है, और डिफरेंट टाइप के जो भी आपके aquatic animal होते हैं तो उनमें क्या होता है, गिल्स होता है. आप यू हैव टू आपको यहाँ पे मैं एक जो है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. दिस इज आवर ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन फिश. You have to this is the gills. Just like we have a lungs, same जो है आपके पास जो है फिश के पास क्या होता है बेटा, गिल्स होते हैं. तो you have to remember these things कि what is the breathing organs in fish, that is the gills. What is the breathing organs in fish, that is the gills. So we have to remember that. Okay, second we have to remember है ना, breathing organs is frog, lungs and skin. We have to remember breathing organs in earthworm, moist skin, and breathing organs in insect, that is the trachea. और एनिमल में अगर हम बात करें तो लंग्स होता है, और ह्यूमन में भी आपका क्या होता है, लंग्स होता है.
अगर हम बात करें प्लांट में, तो व्हाट इज द ऑर्गन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज। तो फर्स्ट ऑफ वी हैव टू रिमेंबर दैट लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ में जो एक्सचेंज गैसेस होता है या गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, दैट इज़ थ्रू द स्टोमेटा, दैट हैपनिंग थ्रू द स्टोमेटा। और अगर हम रूट की बात करें तो रूट में जो है आपका क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका होता है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, स्पेस इन सॉयल। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू द दिस डायग्राम। तो लीफ में तो आपको सिंपल सा स्टोमेटा होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्टोमेटा इन फर्स्ट चैप्टर व्हेन वी स्टडी अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। सो वहाँ पे हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मतलब ब्रीथिंग जो की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपके बेसिकली जो आपके यहाँ पे रूट ईयर होते हैं, दिस इज़ द रूट ईयर, ओके, दिस इज़ योर रूट ईयर। एंड इस रूट ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपकी जो है जो ऑक्सीजन है वो इंटर होती है ना। तो यहाँ पे आपके लिए जो है रूट ईयर याद रखना है। और रूट ईयर में जो है क्या होता है आपका जो ईयर स्पेस होता है उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे आपका ये आपकी रूट है और ये इस तरह से आपका रूट ईयर है। ठीक है, और रूट ईयर की अगर हम बात करें तो वो अटैच हो रखा किससे, यहाँ पे एयर स्पेस से। तो एयर स्पेस में आपकी एयर होती है, वो एयर इंटर होती है फिर रूट ईयर से, और रूट ईयर में फिर रूट में जाती है और वहाँ पे आपका जो है ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस होती है, एंड देन रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो दीज होल थिंग्स अबाउट द ब्रीथिंग in different types of organs. So these whole notes you have to write on your notebook. फिर से थोड़ा सा एक बार जो है 1 मिनट में फिर से जो है थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने बात करते हैं अगर हम इंसेक्ट की, तो बेटा इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट में आपके पास जो है क्या होता है, ट्रैकिया होता है और एक स्पेरिकल्स होते हैं जो आपके ओपनिंग, जिस तरह से हमारे पास नोस्ट्रिल होते हैं उसी तरह से जो है आपके पास इंसेक्ट में क्या होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं। इट इज़ द स्मॉल ओपनिंग ऑन द बॉडी साइड्स। और दूसरा आपके पास क्या होता है, ट्रैकिया होता है ना। सेम अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में थ्रू द स्किन होता है। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग में जो है आपका किसके थ्रू होता है बेटा, लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो है किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो है प्लांट की, तो प्लांट में लीफ में जो है किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और रूट में किसके थ्रू होता है, जो आपके एयर स्पेस होते हैं इन सॉइल में और उससे कनेक्ट रहते हैं हमारे क्या, रूट ईयर। तो आपने सिंपल से याद रखना रूट ईयर के थ्रू जो है प्लांट में होता है। तो यू हैव टू राइट दीज नोट्स ऑन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच।